Good morning, friends, and welcome to our channel PCS and Chemistry. Today we are here to discuss about the strategies regarding chemistry optional paper in the BPSC exam, where chemistry is taken by many students as an optional, since there is very rarely such video available on internet regarding chemistry optional video especially focused for BPSC examination. That's why I have thought to make such video for the help of aspirants. Okay, then in this video we will mainly discuss about the main points like what is the syllabus of BPSC examination for chemistry optional. However, there are different state PCS where chemistry has been given an option for optional, but the syllabus may vary from different state to state. And in this video we will primarily focus on our discussion about BPSC examination. So first of all we will like to talk about the syllabus of chemistry optional, and then we will see the important books and important sources from where we can read the syllabus, and after that we will talk about the marks, the students, how the students were given marks in different examinations in the recent examinations which was conducted by Bihar Public State Service Commission. So it was 63rd exam, 64th, 65th, and even the 66th examination have been recently conducted. Okay, and after that we will talk about the strategy. The video may be long for the since the video is mainly intended to help the aspirants. That's why we will not leave any important discussion. So the video may take long time. Okay, then let's start. If we talk of the syllabus of the chemistry optional in the BPSC exam, then mainly if we talk of the nature of the question paper, then the question paper is mainly divided into two sections. First is the section 1 and the second is the section 2, and we have to answer a total of 6 questions, out of which we have to answer it from 3 from here and the next 3 from here, as per the recent trends. Since in recent time after 60 to 62nd BPSC the syllabus for optional was changed, and since previously there were mainly 2 papers, but right now there is only 1 paper for chemistry optional, and in that paper the question paper is divided into 2 parts. The first part being the section A, where the questions are mainly intended towards the physical and inorganic chemistry. However, the section 2 mainly deals with the organic chemistry. So let's see the syllabus of the examinations. Okay, so the first chapter is the very basic chapter, atomic structure and chemical bonding. This chapter we study from mainly from class 11th, and the knowledge of class 11th can also be utilized here. Like there are various topics such as we can see quantum numbers and the quantum theory, Heisenberg uncertainty principle. So these are the main topics in the chapter. Actually, atomic structure and chemical bonding, these both chapters have been merged for the examination of BPSC. And after that the second chapter is the thermodynamics, where we can see the questions mainly from BSc level, we can say that graduation level, and some very rarely some questions are asked from masters here. After that the third chapter is the solid state, and in this also this part, many of the part of the syllabus can be covered from class 12th chapter, class 12th chemistry. However, there must be some value addition for this examination. We must have to add some extra point from different books to get a better marks in the
examination. We will talk about that later. After that, the fourth chapter being the chemical kinetics, order, molecularity, effect of temperature, absolute reaction rate theory, and the collision theory. These are the main areas. After that, the electrochemistry. Electrochemistry, again the same syllabus like uh, Arrhenius theory. If a student who has done graduation in chemistry or who has prepared for IIT JEE mains, then the then he will not have to worry much about these topics, because these topics are mainly from BSc and from the preparation which are done for the IIT examinations. Af- After that, we can see electrolytic conductance theory and theory of activity coefficients. Also, this part has been added as a new chapter. This is a picture of the official syllabus which is available on the BPSC website. After that, the photochemistry chapter, again this that absorption of light, Lambert's Beer law of photochemistry. These are the topics which are mainly asked. After that, from here we can start the inorganic syllabus. Inorganic syllabus, there is a good weightage in BPSC exam, and as per the recent trends, the number of questions have been constantly increasing from the inorganic part, so we must have to focus on it also. Like electronic configuration introduction, theory of bonding in transition metal, like DD transition theory, crystal field theory. These are the theories. Metal carbonyl bonding, and also especially we have to deal about cyclopentadienyl olefins, acetylene complexes, and compounds with metal-metal bonds. After that, the chapter is lanthanides and actinides chapter. That is the compounds, that is the elements of F block in the periodic table, and these are the D block. And after that, there are some reactions in non-aqueous solvent. This part is rarely asked in examination, or if it is asked, then it is mainly about 10 to 20 marks only. So we can divide this the preparation for the part according to the nature of question that was being asked by the BPSC examination in the last years. After that, here the syllabus for the organic chemistry starts. यहाँ से we can talk about the organic chemistry, like the main parts here are the first chapter being the reaction mechanism. सबसे पहला हो गया आपका रिएक्शन मैकेनिज्म. तो यहाँ पे हम लोग का कुछ एडवांस लेवल का हम लोगों को पढ़ना पड़ता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. तो यहाँ से आपका जाता है जैसे कि फॉर्मेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, कार्बोकैटायन, कार्बोनायन, कार्बीन, नाइट्रीन, ऑल्सो कार्बोकैटायन, कार्बन एंड कार्बीन. यस, फ्री रेडिकल, that was I thinking that what I am missing. Free radicals, carbons, these are the main areas. And after that, SN1 and SN2 mechanism, E1, E2, and E1 में especially this E1 elimination reaction. ये हो गया आपका conjugate base वाला elimination, Michael addition reactions, then nucleophilic substitution reaction, aromatic electrophilic reactions. After that, this is the pericyclic reaction. This is the syllabus taken from PG. This is mainly taught in PG in Bihar. This is a part of PG syllabus of chemistry, Woodward-Hoffman's rules. After that, there are various नेम रिएक्शन. नेम रिएक्शन यहाँ पे बहुत आते हैं, हर एक साल लगभग देखने को हम लोगों को नेम रिएक्शन देखने को मिल जाते हैं. तो बीपीएससी में है आपको नेम रिएक्शन में हो गया एल्डोल कॉन्डेंजेशन, क्लेजन कॉन्डेंजेशन, डिकमैन रिएक्शन, पर्किन रिएक्शन, रिमर्टिमैन रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, और यहाँ पे नीचे कुछ आपके वो भी होंगे रीअरेंजमेंट. यहाँ पे आपको रीअरेंजमेंट वाला पार्ट फ्रीडल क्राफ्ट है, रिफॉर्मेस्की है, पिनाकोल पिनाक्लन है, और वेगनर मिर्विन रीअरेंजमेंट है, बेकमैन भी है. तो ये सब हम लोग का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है. आफ्टर डेट हम लोग यहाँ पे पॉलीमर्स चैप्टर के बारे में अच्छे से स्टडी करना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को एग्जाम में पॉलीमर का फिजिकल केमिस्ट्री भी हम लोग को देखने को मिलता है, प्लस उसका ऑर्गेनिक पार्ट भी, और उसके साथ साथ उसका इन ऑर्गेनिक पॉलीमेरिक सिस्टम से, जैसे कि आपको फॉस्फोनाइट्रिक हैलाइड आते हैं, सिलिकन्स हो गया, बोराजाइंस हो गया, ये सब का प्रिपरेशन सब पूछते हैं वे लोग. ये इंड ग्रुप एनालिसिस, सेडिमेंटेशन,
ये अलग अलग टॉपिक है आपको फिजिकल केमिस्ट्री में। आफ्टर दैट हम लोग देखें कि फोटो केमिस्ट्री, ये जो फोटो केमिकल रिएक्शंस जो हम लोग को यहाँ पढ़ने हैं तो वो भी यहाँ पे हैं, जैसे कि आपका वो नॉरिश टाइप 1 नॉरिश टाइप 2 रिएक्शंस। फिर यहाँ पे कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड द लास्ट चैप्टर बीइंग द स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे लास्ट चैप्टर हम लोग का स्पेक्ट्रोस्कोपी है। इट इज़ अ वेरी टाइम टेकिंग चैप्टर बट इट हैज़ अ वेरी 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 गुड वेटेज इन दी बीपीएससी एग्जामिनेशन। यहाँ पे हम लोग को रोटेशनल स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ना है, दैट इज called as also microwave spectroscopy, then vibrational spectroscopy also called as infrared spectroscopy, and also apart from there यहाँ पे आपको रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी अच्छे सवाल हम लोग को देखने को मिलते हैं। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी हम लोग को यहाँ पे थोड़ी मात्रा में उसका इंट्रोडक्शन लेने का बहुत ज़रूरत है। आफ्टर दैट हम लोग देखें तो ये हो गया हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, दैट इज दिस इज कॉल्ड एज द यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, अल्ट्रा वायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। एंड आफ्टर दैट ये न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के बारे में आते हैं सवाल, और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में भी हम लोग को यहाँ पर पढ़ना पड़ता है। और अपार्ट फ्रॉम हियर यहाँ पे सिलेबस में मेंशन्ड नहीं है बट वो लोग हमेशा सवाल पूछ देते हैं। सातवां हम बात करें तो आपको मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमेशा सवाल आते रहते हैं। कुछ बहुत ही लिमिटेड सवाल हैं, 2-4 ही हैं, बट वो कभी कभी वे लोग पूछते रहते हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से सवाल, जैसे कि क्या आपका हो गया मेटक्लेफी रीअरेंजमेंट, तो ये सब आते रहता है। तो फिर ये सब हमने डिस्कस किया सिलेबस के बारे में कि क्या बीपीएससी का सिलेबस क्या है केमिस्ट्री ऑप्शनल के रिगार्डिंग। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ बुक्स के बारे में, कहाँ से हम लोग आखिर में ये सिलेबस को कवर कर सकते हैं। तो यदि हम हेल्पफुल बुक्स की बात करें देन द फर्स्ट हम लोग इसको क्या पार्ट वाइज देखते हैं, जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री के लिए क्या क्या बुक्स हम लोग प्रेफर कर सकते हैं। एक्चुअली में बुक्स का संख्या बहुत है, देयर आर नंबर ऑफ बुक्स, बट हम लोग यहाँ पर मेनली टॉक करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे कि पहला बुक हो गया आपका PSP, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। इसे हम लोग बोल सकते हैं कि इससे आपका फिजिकल केमिस्ट्री का 80% सिलेबस कवर हो जाएगा। मोर देन 80% सिलेबस आपको इस बुक से, अकेले बुक से कवर हो सकता है। दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री रिटन बाय पुरी शर्मा एंड पठानिया। उसके अलावा यदि आप पढ़ना चाहें तो ये आपको बहल एंड बहल या दैट इज एस चांद की बुक है, और ये आपको KL कपूर की भी बुक बहुत अच्छी है, बट यहाँ पर हम लोग को बस बहुत ही सेलेक्टिव रीडिंग करनी है। KL कपूर की बुक 5 बुक्स हैं केवल फिजिकल केमिस्ट्री के, तो उसमें से आप लोग को बहुत ही सेलेक्टिव रीडिंग करने होंगे। जैसे कि ये KL कपूर का बुक आपका एक अच्छा सोर्स हो सकता है काइनेटिक्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस पढ़ने के लिए, या फिर काइनेटिक्स ऑफ डिफरेंट रिएक्शन, जब हम लोग को वो आपको काइनेटिक्स डिस्कस करने के लिए रिएक्शन दे देता है तो वो इसमें बहुत ही अच्छे से कवर्ड है। और बाकी ये हो गया हम लोग का फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बुक्स। इसके अलावा कुछ और भी बुक्स हो सकते हैं जो कि हेल्पफुल हो, बट ये अब मेरे अकॉर्डिंग ये 3 बुक्स हम लोग के लिए सफिशियंट होंगे फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ बीपीएससी के लिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम बात करें तो यहाँ पे भी आपको एस चांद की ये बुक अच्छी बुक है। फिर आपका JD ली का जो कि आता है कॉन्साइज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इट इज ऑल्सो अ गुड बुक। आफ्टर दैट दिस इज पुरी शर्मा एंड कालिया PSK, दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड बुक फॉर द BPSC केमिस्ट्री एग्जामिनेशन। इसके बाद हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द लेंडिएस्ट पार्ट ऑफ द सिलेबस, और यहाँ पे हम लोग कोई भी एक बुक पे रिलाई नहीं कर सकते। ये बहुत ही मतलब कि इसमें कोई सिंगल बुक में आपको अच्छे मटेरियल्स एक जगह मिलेंगे ही नहीं। दैट्स वाई यहाँ पे बहुत सारे बुक्स के नाम मैंने लिखे हुए हैं, बट इसमें से आप मेजरली चाहें तो ये ऊपर जो 3-4 हैं उसको आप देख सकते हैं। जैसे कि ये आपको एस चांद की बहुत अच्छी बुक है, अरुण बहल एंड BS बहल की। आफ्टर दैट SN सन्याल, दिस इज अ वेरी मस्ट डू बुक, सबसे इंपॉर्टेंट बुक हो जाएगा ये हम लोग के लिए। हालांकि ये सिलेबस का हम लोग के बहुत ही कम पार्ट को कवर करता है, जैसे कि रिएक्शंस यहाँ से कवर हो जाएंगे। ये जो कि हमने देखा ना नेम रिएक्शन, वो फिर से आपका रीअरेंजमेंट, जैसे कि था आपका बेकमैन रीअरेंजमेंट था, पिनाकलन था, और फिर आपका रीएजेंट्स जो कुछ पूछ देते हैं 7-8 रीएजेंट्स जो पढ़ने वो यहाँ से हो जाएंगे। और यहाँ पे आपको जनरल हो जाएगा डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस के बारे में। बाकी आपका जिन एंड शर्मा इज ऑल्सो अ वेरी गुड बुक, इसको मैंने खुद यूज किया हुआ है, सो इट इज ऑल्सो अ गुड बुक। आफ्टर दैट क्योंकि पॉलीमर हम लोग को मेनली स्पेशली पॉलीमर बहुत ही डीप में हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है, डेट्स वाई पॉलीमर केमिस्ट्री के लिए मैंने दूसरे बुक का ही नाम डायरेक्ट लिख दिया। जगदम्बा सिंह का बुक आता है पॉलीमर केमिस्ट्री का, दिस इज अ वेरी गुड बुक। आफ्टर दैट हम लोग बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको जगदम्बा सिंह का इनका भी आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जैसे कि अंडर ग्रेजुएट केमिस्ट्री करके,
तो ये अच्छे बुक है। इसके अलावा कुछ फॉरेन राइटर्स के भी हम लोग को यहाँ पे बुक देखने को मिलते हैं, जैसे कि हो गया क्लेडेन, हो गया जेरी मार्च, हो गया, बाकी भी बहुत सारे बुक्स हैं। बट मेरे देखने से ये आप ऊपर वाले जो बुक है इसी के कवर करने से हो जाएगा, आपको यहाँ पे बीपीएससी के लिए जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बट देयर आर ऑल्सो वेरी गुड बुक्स डेट वाई मैंने यहाँ पे इसके बारे में चर्चा किया हुआ है। आफ्टर दैट हम लोग देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए कुछ अच्छे बुक्स होंगे, जैसे कि पीएस कल्जी की ये अच्छी बुक है। हालांकि इसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा आपका पढ़ने में, बट ये अच्छी बुक है कि पीएस कल्जी हो गया। स्पेक्ट्रोस्कोपी का आपका वाई आर शर्मा का बुक, दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड बुक, यशवंत की ये बुक है। आफ्टर दैट हम लोग बात करें तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका विलियम केम्प का है, फिर आपका पाविया का है, ये सब क्वेश्चंस करने के लिए अच्छे बुक है। बट यदि हम लोग बीपीएससी के रिगार्डिंग बात करें तो आई थिंक ये 2 बुक दीज आर सफिशियंट, दीज 2 बुक्स आर मोर देन सफिशियंट फॉर द बीपीएससी एग्जामिनेशन। ठीक, तो फिर ये रहा हम लोग का बुक मटेरियल जो कि हम लोगों को ज़रूरत है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक लिस्ट हैं। इसके बाद हम बात करें कि आखिर में अब केमिस्ट्री का हमने ये क्या सिलेबस देख लिया, सिलेबस के बाद हमने देखा कि कौन कौन से बुक है, बट अब हम लोग ये तो देख ले कि भाई केमिस्ट्री में मार्क्स कैसे मिलते हैं, बीपीएससी में केमिस्ट्री के क्या मार्किंग है। तो पहले हम लोग बात करते हैं 63rd बीपीएससी का। तो 63rd बीपीएससी का वैसे मेरे पास इसका मार्क्स का स्क्रीनशॉट अवेलेबल नहीं है, बट ये मेरे जान पहचान में एक हैं, उनको 172 मार्क्स मिला था। तो ये मार्क्स है 172 आउट ऑफ 300, वैसे गुड मार्क हम लोग बोल सकते हैं, अच्छा नंबर। आफ्टर दैट हम लोग बात करें 64th बीपीएससी का, जो कि हाल ही में इसका रिजल्ट आया था। 64th में आपको 198 एक स्टूडेंट का हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, शायद ये साफ नहीं दिख रहा हो, तो 198 था। आफ्टर दैट यहाँ पे 195 था, फिर आपको 169। तो इस तरह से नंबर अच्छे मात्रा में मिलते हैं केमिस्ट्री में यदि आपने अच्छे से लिखा है, देन यू विल गेट गुड स्कोर्स। हाउएवर कभी कभी किसी क्वेश्चंस में बहुत ही कम नंबर मिल सकते हैं, जैसे कि हम लोग पैटर्न का बात करें तो फिर 63rd पैटर्न वाज डिफरेंट और 64th पैटर्न वाज ऑल्सो डिफरेंट। यहाँ पर बस 25 मार्क्स के 2 ही सवाल आए थे। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो ये आपको बहुत ही, मेरे देखने से ज़्यादा लेंदी नहीं है, बट उसमें आपको अच्छा क्वालिटी कंटेंट प्लस उसको थोड़ा डिटेल्ड में लिखना था, क्वेश्चंस कम थे। बट यहाँ से 64th के बाद जो आपको 65th बीपीएससी और 66th बीपीएससी में जो कि केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हम लोगों को देखने को मिले हैं, वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो गए। अब 64th में बच्चे प्रिपेयर किए थे कि हर एक क्वेश्चंस के 2 पार्ट होंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, 25-25 नंबर का ऐसा एक्सपेक्टेशन था, या आपको मैक्सिमम 3 पार्ट होंगे। बट यहाँ पर इन्होंने क्या किया, 65th बीपीएससी में यहाँ पे एग्जाम में उन्होंने एक क्वेश्चन के तो 4 पार्ट बनाए, और वो 4 पार्ट बनाने के बाद उसमें भी आप ये लोग सब सेक्शन दे दिए। तो यहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा टाइम लगा था क्वेश्चंस के आंसर लिखने में, और ये इट वाज अ वेरी अनएक्सपेक्टेड पेपर। डेट्स वाई यहाँ पे हम लोग को थोड़ा बैड मार्किंग केमिस्ट्री में देखने को मिलता है। यहाँ पर 88 मार्क्स थे एक कैंडिडेट के, वैसे ही दूसरे कैंडिडेट के 129 मार्क्स थे। ये सब आपको बीपीएससी का ऑफिशियल मार्कशीट का ये सब स्क्रीनशॉट्स हैं। जैसे कि यहाँ पर 65th में 88 था, यहाँ 129 था। वहीं हम 64th का बात करें तो 198, 195 एंड 169, और 63rd बीपीएससी में 172। इसका स्क्रीनशॉट अभी अवेलेबल मेरे पास नहीं है। तो ये रहा इसके बारे में। यदि हम लोग प्रिपरेशन का बात करें तो फिर प्रिपरेशन के लिए हम लोग चाहें तो फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर अच्छे से फोकस कर सकते हैं, और सेकेंड पार्ट हम लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे अच्छे से फोकस करना पड़ेगा, और वो फोकस करने के लिए ये सब बुक्स बहुत ही हेल्पफुल हैं। तो फिर आप लोग चाहें तो फिर ये सब बुक का सहारा लेकर आप लोग ट्राई कर सकते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट जो भी केमिस्ट्री ऑप्शनल के बारे में हम लोगों को बात करने थे, इसके बारे में यहाँ तक रहा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक थैंक यू, and like and subscribe and share to your near and dear ones. If you like our initiative then please do subscribe to our channel and like and comment. और यदि आप लोगों को कुछ सुझाव भी देना हो तो उसे आप लोग कमेंट के थ्रू दे सकते हैं। ओके, देन थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय, सी यू सून।